کو بتائیں صوبائی دارالحکومت میں چینی کے بحران کا خدشہ ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی ڈبل سینچری کے قریب پہنچ گئی ہے۔ چینی کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ جاری ہے۔ پرچون میں چینی 185 سے 190 روپے تک فروخت ہونے لگی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ زاہد عابد سے۔ زاہد عابد بتائیے۔ جی بالکل، مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں تیزی کا رجحان جاری ہے اور اس وقت پرچون مارکیٹ میں عام طور پر جو چینی کا نرخ ہے 185 روپے فی کلو تک دیکھا جا رہا ہے، جبکہ بعض جگہ پر اس سے زیادہ پر بھی فروخت ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوگر ملرز کی جانب سے اس وقت چینی من مانی قیمت پر فراہم کی جا رہی ہے۔ شوگر ملرز اس وقت جو چینی ریٹ دے رہے ہیں وہ تقریباً 171 سے 175 روپے فی کلو تک ہے، جو کہ تھوک مارکیٹ میں تقریباً 178 سے 179 روپے فی کلو جا پڑتی ہے، اور جب پرچون میں یہی چینی پہنچتی ہے تو تقریباً 185 روپے فی کلو اس وقت بیچی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ جو مستقبل کے سودے ہو رہے ہیں شوگر ملرز کی جانب سے وہ 180 روپے فی کلو تک ہو رہے ہیں، جس سے یہ امکان بالکل موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت میں مزید تیزی دیکھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سرکاری ریٹ کوئی نہیں ہے چینی کا۔ حکومت نے جو چینی کا 98 روپے 82 پیسے سرکاری ریٹ مقرر کیا تھا وہ معاملہ عدالت میں ہے، اور شوگر ملرز کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جس وقت تک عدالتی معاملہ طے نہیں ہوگا وہ نئی قیمت کے تعین کے لیے حکومت کے ساتھ کسی قسم کا مذاکرات یا بات چیت نہیں کریں گے۔ اور اس وقت جو چینی کی صورتحال ہے اس میں نہ صرف اس وقت تیزی کا رجحان ہے بلکہ آنے والے دنوں میں چینی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس طرح جو دیگر مہنگائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چینی بھی ایک ایسا آئٹم بن چکی ہے جو کہ ہر لمحے جس کی قیمت میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد عابد۔ آٹے اور چینی کی مقررہ قیمت پر فروخت انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ محکمہ خوراک شوگر مافیا اور ملز مالکان کے آگے بے بس ہو گیا۔ شہر میں آٹے اور چینی کے منمانے ریٹس وصول کیے جانے لگے ہیں۔ چینی کم از کم 175 اور زیادہ سے زیادہ 200 روپے تک فروخت ہونے لگی ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2750 روپے میں مل رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آٹے اور چینی کی مقررہ قیمت پر فروخت انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ محکمہ خوراک شوگر مافیا اور ملز مالکان کے آگے بے بس دکھائی دیتی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران اکبر بتائیے۔ جی بالکل، موجودہ صورتحال اگر دیکھی جائے تو عام آدمی جو ہے وہ ہیجانی کیفیت میں ہے، جبکہ چھاپے کارروائیاں سب بیکار ہیں۔ سٹا مافیا جو ہے وہ قابو کرنا ان کے لیے حکومت کے لیے چیلنج بن چکا ہے، چونکہ شہر میں اس وقت آٹے اور چینی کے منمانے ریٹس وصول کیے جانے لگے ہیں۔ سٹا باز اور ملز مالکان کے آگے محکمہ خوراک بے بس ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگ آٹے کی قیمت سے پہلے ہی پریشان تھے، اب چینی کو بھی پڑ لگے ہیں۔ اس وجہ سے چینی کی قلت کا سلسلہ بھی تھم نہیں رہا، ذخیرہ اندوز متحرک ہو چکے ہیں۔ شوگر اور آٹا مافیا دونوں چیزوں کے منمانے ریٹس نکالنے میں مصروف ہیں، جبکہ چینی کی فروخت کم سے کم قیمت 175 روپے سے 200 روپے تک مل رہی ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 250 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ از خود ریٹس ہیں یہ، جس میں آٹے کا 10 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے 1400 روپے میں دستیاب، جبکہ کھلا سفید فائن آٹا 155 روپے میں مل رہا ہے۔ عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکٹری خوراک زمان وٹو کا کہنا ہے کہ اب تک 48 ارب روپے شوگر مافیا عوام کی جیبوں سے اڑا چکا ہے، جبکہ مافیا سرگرم ہے۔ قانونی جنگ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس وقت اوپن مارکیٹ میں آٹا چینی کے سرکاری نرخ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں چینی اور آٹے کی قیمتوں کا تعین محکمہ خوراک کرتا ہے، جبکہ درآمدی گندم رواں ماہ آنے سے آٹے کی قیمت مستحکم ہو جائے گی۔ محکمہ خوراک کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چینی کی قیمتوں پر شوگر ملز مالکان نے اسٹے لے رکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اکبر۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں آٹے اور چینی کی مقررہ قیمت پر فروخت انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ محکمہ خوراک شوگر مافیا اور ملز مالکان کے آگے بے بس ہو گیا۔ شہر میں آٹے اور چینی کے منمانے ریٹس وصول کیے جانے لگے ہیں۔ عوام کو مہنگائی سے نجات نہ مل سکی۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں اور 4 پھل مزید مہنگے ہو گئے۔ ٹماٹر اور پیاز 120 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ پھلوں میں انار 550، آڑو 400، انگور 450 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، سبزیوں کے حوالے سے آج بات کی جائے تو جو ریٹ لسٹ جاری کی گئی ہے مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے، اس میں 3 سبزیوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا۔ پیاز 8 روپے مہنگا کر کے 80 روپے، ٹماٹر 5 روپے مہنگے کر کے 85 روپے میں کر کیے گئے، لیکن یہ سرکاری ریٹ لسٹ کی قیمت ہے۔ منڈیوں میں اور مارکیٹوں میں جو قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں شہریوں سے وہ سرکاری ناموں کے برعکس زائد وصول کی جا رہی ہیں۔ سیب کالا کولی جو ہے 5 روپے مہنگا کر کے 195 روپے مقرر کیا گیا۔ اسی طرح کیلا درجہ دوم 5 روپے مہنگا کر کے 95 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، جبکہ کھجور ایرانی 10
रुपए इजाफे के बाद 550 रुपए, और आम जो है वो 5 रुपए महंगा करके 190 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताएगा कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा, फलों की कीमतों में इजाफा, ब्रायलर, अंडे, कुछ चीज सस्ती है? हर चीज में इजाफा, कोई चीज सस्ती नहीं है। पहले कितना खर्चा हो जाता था, अब कितना होता है? पहले तो ये कुछ 400 रुपए का, अब तो 1000, 1200-1500 से ऊपर टप गया। अब तो खाना मुश्किल हो गया, एक टाइप का खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ के जो है वो गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका हुआ, फल जो है वो एक आम आदमी जो है वो नहीं खरीद सकता। इसी तरह ब्रायलर की कीमतें महंगी हैं, जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अब जो जिंदगी गुजारना है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की जाए या पेट की खातिर जो है वो अशिया खुरोनोश की खरीदारी की जाए, तमाम अशिया जो है वो कुव्वत खरीद से बाहर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। सरकारी वकील ने आईजी पंजाब को पेश होने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने आईजी पंजाब को दोपहर 2 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया है। अगर आईजी पंजाब पेश ना हुए तो अदालत हुक्म जारी करेगी। जस्टिस अमजद रफ़ीक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, का समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने वक्फे के बाद दोबारा केस की समाअत की, तो इस मौके पर अदालत को ये बताया गया कि आईजी पंजाब को अदालत का ऑर्डर पास नहीं हो सका, लिहाजा आईजी पंजाब को पेश होने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने दोपहर 2 बजे आईजी पंजाब को पेश होने का हुक्म दे दिया। और साथ ही साथ अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त से मुतल्लिक डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को भी दोपहर 2 बजे पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। और अभी आपको अहम खबर के हवाले से आगाह करें। बुशरा बीबी की मुमकिना गिरफ्तारी। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में वफाक नैब FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हूँ, मेरे शोहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। आपको बता रहे हैं बुशरा बीबी की मुमकिना गिरफ्तारी का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में वफाक नैब FIA समेत दीगर को भी फरीक बनाया गया है, जबकि बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हूँ, मेरे शोहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनके शोहर को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। नैब FIA, पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों ने बेबुनियाद मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। और उन्होंने दरख्वास्त में ये भी नुक्ता उठाया कि मेरे शोहर के बाद अब मुझे भी सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा अदालत अब तक दर्ज खुफिया मुकदमात की इंक्वायरी और मुकदमात की तफसीलात पेश करने के अहकाम जारी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, माली साल 2023-24 में 4 माह का बजट मंजूर किया गया। पहले 2 माह में पंजाब हुकूमत खातिर खा इक़दाम ना कर सकी। ठेकों में शफाफियत के लिए ई-कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल के क़याम का फैसला किया गया है। बजट के पहले 2 माह में ई-कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल तश्कील नहीं पाया जा सका। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट कीजिए। माली साल 2023-24 में निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से 4 माह का बजट पेश किया गया था और इन 4 माह में शहर लाहौर में डेवलपमेंट के लिए जो LDA के अहदाफ थे वो भी मुकर्रर कर दिए गए। लेकिन अब इन 4 माह के बजट में से 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक सालाना तरक्याती प्रोग्राम में LDA के जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। इसके अलावा 2017 के जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज में शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने का ठेका था वो दिया गया और काम का आगाज़ किया गया। और अब 6 साल बाद निगरान पंजाब हुकूमत ने उस डेवलपमेंट पैकेज को मुकम्मल करने का टास्क LDA को सौंपा, लेकिन अभी तक ये टास्क भी मुकम्मल नहीं हो सका। इस सिलसिले में जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रख शादरा, इसके अलावा सिंहपुरा और चाइना स्कीम को मुकम्मल करने का हदफ अबूर नहीं किया जा सका, जबकि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स टाउनशिप, कैनाल रोड, कहना NA 119 और NA 120 को भी मुकम्मल ना किया जा सका। सिर्फ इन 2 माह में सब्ज़ादार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जिसका तामीराती काम मुकम्मल हो सका है। इसके अलावा रवां माली साल के 4 माह के बजट में
ख्वाजा अहमद हसान रोड की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा बनाया गया था और इस मंसूबे के लिए 5 करोड़ और 13 करोड़ 6 लाख रुपए बिल तरतीब मुख्तस किए गए। ना ही महकमा ख़जाना की जानिब से इन मनसूबों की तकमील के लिए मुकम्मल फ़ंड्स का इजरा किया जा सका और ना ही LDA इंतज़ामिया टेंडर के अमल से मज़ीद आगे बढ़ सकी, जिसकी वजह से ये मनसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका। अब LDA की जानिब से दोबारा महकमा ख़जाना को इस अमर की इस्तदा की गई है कि फ़ंड्स का इजरा किया जाए ताकि जो बजट में फ़ंड्स रखे गए हैं, बजट में मनसूबे रखे गए हैं, इनको पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। खबर शामिल करें, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खिलाफ केस। अदालती अहकामात के बावजूद दरख्तों के कटाव के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने एडिशनल DG PHA को फौरी काम से रोकने का हुक्म दे दिया है। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। हाई कोर्ट ने छोटे मुलाजमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। इस मौके पर माहौलियाती कमीशन के मेंबर और दीगर जो अफसरान थे वो अदालत में पेश हुए। इस मौके पर जस्टिस शाहिद करीम ने यह कहा कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाए और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने अहकामात के बावजूद दरख्त काटने पर एडिशनल DG पार्क एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी को फौरी तौर पर काम से रोकने का हुक्म दे दिया और अदालत ने कहा कि अदालत एडिशनल डायरेक्टर जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। इसके साथ साथ अदालत ने छोटे मुलाजमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई को खत्म करने के अहकाम जारी कर दी और ये कहा कि अब सिर्फ बड़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी और लाहौर को बचाने के लिए PHA को अपना काम करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने तफसील नगाह किया। निगरान वज़ीर आला का लाहौर रिंग रोड सदरा लूप 3 प्रोजेक्ट का फ़िज़ाई दौरा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात भी इस मौके पर हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनसूबे पर जारी तामीराती कामों का जायज़ा लिया है। प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के हवाले से सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात को हिदायत भी दी गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली, आगाह कीजिए। और बिल्कुल निगरान वज़ीर पंजाब जो कि तामीराती मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए खासे मुतहरिक और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का खुद जाकर जायजा ले रहे हैं। आज उन्होंने जो है वो लाहौर रिंग रोड से लूथरी प्रोजेक्ट का भी फ़िज़ाई दौरा किया है। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी कम्युनिकेशन वर्क्स जो है वो भी उनके साथ थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनसूबे पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया और लाहौर रिंग रोड से लूथरी के तकरीबन 8 किलोमीटर से ज़ायद रूट का फ़िज़ाई मुआयना किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के हवाले से सेक्रेटरी तामीरात को हदायत दी और उनका कहना था कि रिंग रोड से लूथरी की तकमील से आवाम को आमदरफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी और इंशाअल्लाह ये मनसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारों पर FIR का मामला। लाहौर तालीमी बोर्ड में कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी गई। तालीमी बोर्ड के तमाम सेक्शन में काम ठप है। इंटरमीडिएट के नताइज मुतासर होने का भी खदशा है। मुलाजमीन का कहना है कि FIR वापस लेने तक हड़ताल जारी रहेगी। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर तालीमी बोर्ड में और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर यूनियन की कॉल पर कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया गया है और जो हड़ताल है इसलिए की जा रही है कि यूनियन के ओहदेदारान पर जो इंतजामिया की जानिब से FIR दर्ज करवाई गई थी और इस हड़ताल की वजह से इंटरमीडिएट के जो नताइज हैं वो भी लेट होने का खदशा पैदा हो गया है। तो यूनियन के ओहदेदारान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि जो FIR दर्ज करवाई गई थी उसके हवाले से अब क्या अपडेट है? कोई इंतजामिया वापस ले रही है FIR? ये जो हमारा सेक्रेटरी बुशरा बीबी सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड ने जो हमारे खिलाफ झूठी FIR कटवाई है, इंशाल्लाह ताला हम उसका फेस कर रहे हैं और अपने हक के ऊपर लड़ते रहेंगे। ये हमें आगे क्लियर करे कि FIR किस वजह से हमारे ऊपर नाजायज़ कटवाई गई है और जब तक ये हमारा पुरअमन एहतजाज है और जब तक ये FIR वापस नहीं होती और सेक्रेटरी बुशरा बीबी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, ये एहतजाज जारी रहेगा। बिल्कुल, इन्होंने सेक्रेटरी के तबादले का मुतालबा किया। ये बताइएगा, जो बुनियादी मुतालबा था कि जो मरकजी इम्तहानी सेंटर है वहाँ पर जो है दफातर नहीं कायम होने दिए जाएंगे, तो वो आपका मुतालबा कायम है? हमारे ओहदेदारान के ऊपर झूठी FIR काटी जा चुकी है, हम उसको फेस भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब तक सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड को चेंज नहीं किया जाता और FIR वापस नहीं ली जाती,
ये कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। इंटरमीडिएट के जो नतीजे हैं 13 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। अगर किसी किस्म की जो लेट हुआ वो तमाम तार जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। आज न सिर्फ लाहौर बोर्ड बल्कि दीगर जो पंजाब के बोर्ड्स हैं वहाँ पर भी कलम छोड़ हड़ताल जो है उसका आगाज़ किया गया है और मुलाजमीन का यही कहना है कि फौरी तौर पर जो इन पर FIR दर्ज की गई है वो वापस ली जाए और जो सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड है उसका तबादला किया जाए। शुक्रिया आतिफ परवेज। कस्टम इंटेलिजेंस की स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ इलाकों से स्मगल शुदा 47 लग्जरी गाड़ियों की बड़ी खेप पकड़ ली गई है। जब्त शुदा गाड़ियों की कीमत 18 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत है। गाड़ियों को कस्टम्स इंटेलिजेंस के गोदामों में मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं राहील अली से। राहील बताइए। कस्टम इंटेलिजेंस ने ये नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों और के खिलाफ जो है वो बड़ा क्रैकडाउन किया और इस हवाले से माह अगस्त में जो है वो नया रिकॉर्ड कायम करके 47 नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ जो है वो जब्त की गई हैं। एडिशनल जो डायरेक्टर रिजवान बशीर की हिदायत पर जो है वो सुप्रीडेंट रावका उन्होंने टीम के हमरा जो है ये कार्रवाइयाँ की हैं। मुख्तलिफ इलाकों से जो है ये गाड़ियाँ जब्त की गई हैं जिसमें टोटल लैंड क्रूजर है, टोयोटा PS है, टोयोटा एक्वा कार है और दीगर जो है वो गाड़ियाँ हैं जिनकी मालियत तकरीबन 18 करोड़ 70 लाख रुपए जो है वो बताई जा रही है। इससे पहले भी जो है कस्टम इंटेलिजेंस ने जो है वो पिछले फरवरी में भी जो है वो 29 गाड़ियाँ पकड़ी थी। तो एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर का कहना यह है कि जो भी शहरी नॉन कस्टम प्लेट या टेम्पल गाड़ियाँ इस्तेमाल करे उस हवाले से जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया है। इस हवाले से पंजाब पुलिस का जो है वो शहरी डिपार्टमेंट उनसे इंफॉर्मेशन अभी जो है वो काल आकर जो है वो गाड़ियाँ जब्त की गई हैं और इस हवाले से जो है एक टीम तश्कील दी गई है जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो शहरी ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे नॉन कस्टम प्लेट उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जो है वो किया जा रहा है। जो एडिशनल डायरेक्टर है रिजवान बशीर का कहना यह है कि मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए ऐसी वेबसाइट जहाँ पर लोगों को गाड़ियाँ फरोख्त की जा रही हैं उनसे जो है इन्फॉर्मेशन ली जाती है और ये गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि जो नॉन कस्टम प्लेट लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल करने कस्टम ड्यूटी की कीमत में लाखों रुपए का जो है वो नुकसान होता है सरकारी खजाने को उसको रोका जा सके और इससे वाले की कार्रवाई करते हुए यह रिकॉर्ड कायम किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील अली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं इकबाल टाउन में मुलजिम ने लड़की से 62 लाख रुपए हथिया लिए। सफाक मुलजिम की लड़की से मुबैना ज़्यादती वीडियो भी बनाई। लड़की की मुलजिम शफात से 4 माह कबल फ़ोन पर दोस्ती हुई थी। थाना इकबाल टाउन पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, इकबाल टाउन के इलाके में सफाक मुलजिम ने हसास दायरे का अफसर बनकर लड़की को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर फाश वीडियो और तस्वीर बना के 62 लाख रुपए हथिया लिए हैं। पुलिस के मुताबिक इकबाल टाउन के इलाके में जो है एक खातून की 4 माह कबल शफात नामी शख्स से फोन पर दोस्ती हुई और शफात नामी मुलजिम ने लड़की को बताया कि वो हसास दायरे का आला अफसर है और उसके वालिदैन फौत हो चुके हैं। सफाक मुलजिम ने वक्फे से लड़की से 62 लाख रुपए हथिया लिए हैं और मुलजिम ने जो है अपनी खाला से मिलवाने और पैसे वापस देने का झांसा देकर एक फ्लैट में ले जाकर लड़की को असला के तौर पर जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर 5 वीडियो और तस्वीर बनाई। थाना इकबाल टाउन पुलिस ने मुतासर लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी तक मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ठीक है, शुक्रिया मुजाहिद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि अगस्त के महीने में 147 बेकारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। बेकारी माफिया के खिलाफ 16 FIR दर्ज करवाई गई हैं। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हदायत पर गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंसाफी गदागरी मुहिम के तहत रेस्क्यू टीम की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लाहौर में अगस्त के महीने में 147 बेकारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। इस मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि पंजाब भर में गुज़िश्ता माह के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन फादर में रेस्क्यू टीम ने 36 बेकारी बच्चों को तहवील में लिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बेकारी माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 16 FIR दर्ज करवाई गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया सईद, आपने आगाह किया। लाहौर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। लाहौर में 2,11,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम लाहौर की 29 यूनियन कौंसिल में मुनक्किद की जा रही है। 1,386 वर्कर्स इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद बिलाल, बताइए।
जी बिल्कुल, पोलियो की रोकथाम के हवाले से आज से लाहौर और रावलपिंडी में पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है और इन दोनों शहरों में जो पोलियो के माहौलियाती नमूने थे ये मस्बत आए थे। लाहौर की 29 यूनियन काउंसिल्स में ये पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें तकरीबन 5 साल से कम उम्र के 2 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी तरह रावलपिंडी की 4 तहसीलों में पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें 5 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं इनको पोलियो से कतरे पिलाए जाएंगे और ये जो मुहिम है ये 7 रोज़ तक जारी रहेगी और इसमें तकरीबन 7,000 से ज़ायद जो पोलियो वर्कर्स हैं इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिज़र अफजाल की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो पोलियो वायरस मौजूद है इसको ख़त्म करने के हवाले से ये जो मुहिम है ये शुरू की जा रही है। पंजाब के अंदर दीगर सूबों से वायरस जो है ये मुंतकिल होने के खदशात है, इस हवाले से ये मुहिम जो है शुरू की जा रही है ताकि जो ऐसे बच्चे जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है उनको पोलियो के कतरे पिला के उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर किया जा सके। इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान की जानिब से कहा यह जा रहा है कि पोलियो की रोकथाम के हवाले से तमाम तर जो मुमकिन इक़दाम है ये किए जा रहे हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि पोलियो की जो टीमें घरों में आकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं इनके साथ ताउन करें और अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। को बताएं बिजली के तारों को स्कूलों के दरवाज़ों से हटाया जाए, बिजली के सामान और तारों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बिजली के तारों से हादसे का जिम्मेदार स्कूल सरबराह होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। गुज़श्ता रात शेखुपुरा के स्कूल में बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हो गया था। उसके बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है। अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया गुज़श्ता रात शेखुपुरा के स्कूल में बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हो गया, जिसके बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने एडवाइजरी जारी की। बिजली के तारों को स्कूलों के दरवाज़ों से हटाया जाए, बिजली के सामान और तारों को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए। बिजली के तारों से हादसे का जिम्मेदार स्कूल सरबराह होगा। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ से। जी आतिफ बताइए। हाँ जी बिल्कुल, पिछले हफ्ते एक वाक़या शेखुपुरा में पेश आया था जहाँ पर सरकारी स्कूल में एक बच्चा जो है करंट लगने से जाँबहक हो गया था। तो इस वाक़े के बाद अब एडवाइजरी जो है तमाम सरकारी और निजी स्कूलों के लिए जारी कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर इंस्पेक्शन की जाए, जो तारें हैं उनकी चेकिंग करवाई जाए और तारें जो है वो मेन गेट से दूर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है उसको भी बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए। वार्निंग साइन जो है वो लगाया जाए और इसके साथ साथ तमाम वायरिंग को दोबारा से चेक किया जाए। और ये कहा गया है कि अगर कोई हादसा दोबारा पेश आता है तो उसकी जिम्मेदारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। परवेज़ इलाही की रिहाई और गिरफ्तारी न करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। नैब ने अपनी इंट्रा कोर्ट अपील में परवेज़ इलाही समेत दीगर को फरीक बनाया है। सिंगल बेंच ने नैब का पूरा मौक़िफ़ सुने बगैर परवेज़ इलाही की रिहाई का हुक्म दिया। अपील में नैब का यह मौक़िफ़ है। आपको बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही की रिहाई और गिरफ्तार न करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। नैब ने अपनी इंट्रा कोर्ट अपील में परवेज़ इलाही समेत दीगर को फरीक बनाया है। चहलम हज़रत इमाम हुसैन के जुलूसों और मजालिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। 30,000 से ज़ायद अफसरान, एहलकार और रज़ाकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। IG पंजाब का हज़रत उस्मान अली हजवेरी के उर्स के मौके पर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, अजीब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दर पर चहलम हज़रत इमाम हुसैन के आज़ादारी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी का प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 677 मजालिस और 377 जुलूस की सिक्योरिटी पर 30,000 से ज़्यादा अफसरान और रज़ाकार जो है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत में 44 मजालिस, 5 मरकज़ी आज़ादारी जुलूसों की सिक्योरिटी पर 7,000 से ज़्यादा अफसरान और रज़ाकार तैनात होंगे। तर्जुमान पंजाब पुलिस का मज़ीद कहना है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तमाम आज़ादारी जुलूसों मजालिस के सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। इस वाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि मज़ीद 7 मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर अज़ाफ़ी नफरी तैनात की जाएगी। आज़ादारी जुलूसों के रूस में आने वाली बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात। DC राफ़े हैदर का अलिफ हवेली से बरामद होने वाले जुलूस के रूट का जायज़ा। DC लाहौर की जुलूस मुंतज़मीन से मुलाकात भी हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास ने इस मौके पर ब्रीफिंग दी है राफ़े हैदर को। चहलम हज़रत हुसैन के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात। DC राफ़े हैदर का अलिफ हवेली से बरामद होने वाले जुलूस के रूट का जायज़ा लिया गया है, जबकि DC लाहौर की जुलूस मुंतज़मीन से मुलाकात भी हुई है।
निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम से फैसल ईधी की मुलाकात हुई है। फैसल ईधी को खिदमत इंसानियत करने पर यादगारी शील्ड भी दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, आज निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम की जो है ये फैसल ईदी से जो मुलाकात है ये हुई है और इस हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से फर्शत का इजहार भी किया गया और निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने फैसल ईदी को खिदमत इंसानियत करने पर यादगारी शील्ड भी दी, जबकि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल डॉक्टर जावेद अकरम ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में अहम सतह का इजलास भी किया। इस मौके पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर फरकत भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत का ये कहना था कि जो है ज़हनी मजदूरी का शिकार अफराद की बहाली के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए और ईदी वेलफेयर सेंटर मुल्तान से लाई गई ज़हनी मजदूरी का शिकार अफराद के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में दोबारा असेसमेंट करवाई जा रही है और ईदी वेलफेयर ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, आपने तफसील नगाह किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने इस मौके पर शिरकत की। जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस मिस आलिया नीलम भी शरीक हुई। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, इजलास का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में जारी है। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कर रहे हैं, जबकि इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस राहील कामरान शेख, जस्टिस अजहर जवेद गुराल, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस शकील अहमद और उनके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस आसिम हफीज और उनके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रसाल हसन सैयद, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस राहील कामरान शेख और उनके साथ साथ दीगर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। और अभी आपको बताएं, हज़रत अली हजवेरी के 980वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात की तैयारियां। डीसी लाहौर आफ़ हैदर का दरबार हज़रत दाता गंज बख्श का तफसीली दौरा। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने डीसी लाहौर को इस मौके पर ब्रीफिंग दी है। हज़रत अली हजवेरी के 980वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात की तैयारियाँ जारी हैं, जबकि डीसी लाहौर आफ़ हैदर का दरबार हज़रत दाता गंज बख्श का तफसीली दौरा भी किया गया है और इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने डीसी लाहौर को ब्रीफिंग भी दी है। डीसी लाहौर आफ़ हैदर का दरबार हज़रत दाता गंज बख्श का तफसीली दौरा भी किया गया है।